In today's time, we are all trying to present ourselves in our best pictures, giving out just a perfect family, a perfect society, perfect individual. In the process, what is happening is we are not telling about what are our failures. We are pushing our failures under the carpet and trying to tell that success comes without any failure. Everybody has failures in their life, but the sad part is we don't share our stories of failure. Thus what happens is that people believe that we need to have a perfect life journey to reach our extreme destination of where we are, but that's not the fact. We all have our failure stories, and thus we are going to all share over here our failure stories and see how we have indeed become better people and reach better positions because of that. Start with my definition of failure. In my parents' opinion, I have always been a failure. In my opinion, I am doing just fairly okay. I was a good student. My parents had high expectations of me. But by the time I completed my 12th grade, I wanted to be a doctor. My parents said, no, don't be a doctor, become a government, apply for government services, become an IAS or IPS or something like that, which carries more weightage, which provides you better resources, better access and better services and better facilities. So I initially, yes, I wanted to be a doctor, and I still somehow feel that lack. I tried preparing for government exams, tried them 3 times, 4 times, never cleared. So by the time I gave my 3rd attempt, I realized that I won't be able to do it. I was already 24 years old by that time. So I jumped into the private job pool. My parents called it a failure, that we gave you all possible resources to study, but you could not even clear one government exam. I was constantly and often compared with my own mother, who is a government servant. She's a doctor. While I did agree that government exams are often considered as a parameter of success, let's say huge parameter of success, I didn't want to go ahead with them. My initial dream of becoming a doctor was shattered. I didn't do well in government exam preparations either, and when I took private jobs, it was extremely challenging because there is no certainty. One day you are here, and on second day there is a possibility that you could be given a notice. I've been a teacher for 20 years. 20 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, और मैंने हमेशा अपने केस में या बच्चों के केस में ये देखा है कि हम अपने आप को, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हमें कितने पॉपुलर हैं, लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स का व्यू पॉइंट क्या है, दोस्त क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं, एंड दुनिया क्या कहती है, हम अपने आप को इस हिसाब से सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल मानते हैं। मैंने ब्रांड नेम जीन्स नहीं पहनी, मैंने ब्रांड नेम टी शर्ट नहीं पहनी, मेरे जूते नॉर्मल 100 रुपए वाले हैं, तो मैं अनसक्सेसफुल हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया में दिखावा ज्यादा है थोड़ा सा, राइट। अब सक्सेस की क्या आप वो कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे, या आप सक्सेस को क्या समझेंगे? मैंने अगर जिंदगी में इतना कमाया कि मैं खुश हूँ, अपने हिसाब से जी सकती हूँ, तो क्यों नहीं मैं सक्सेसफुल? आप सोच के देखिए, हमारी ये जो जिंदगी है, हमें एक जिंदगी मिलती है। अगर आपने इस जिंदगी में एक बार फेलियर देखा तो क्या आप छोड़ देंगे? ये वो क्रिकेट मैच है जो गली में कोई नहीं है, बॉलर बॉल फेंकते जा रहा है, पीछे विकेट कीपर नहीं है, आप चौका मारिए, छक्का मारिए, या वो बॉल छोड़ के अगली पे मारिए, क्या फर्क पड़ता है? आज मेरा मन किया कुछ इंस्टेंट नूडल्स खाने, ठीक है, और मेरे गीले बन गए या खराब बन गए, तो क्या मैं कल कोशिश नहीं करूंगी? ये हमारी जिंदगी है, नूडल्स और क्रिकेट मैच से तो ज्यादा जरूरी है ना, इज इट नॉट सो? सो सक्सेस एक चीज है जो हमें मेहनत के साथ अचीव करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं स्मार्ट काम करो, लोग कहते हैं कि भाई चलो जल्दी से खत्म करो,
मतलब इतने सारे शॉर्टकट्स हैं दुनिया में इंटरनेट के साथ, इतने सारे एप्स हैं, लेकिन मेहनत कभी भी जो है खराब नहीं जाती। कोई भी आप काम करो, इवन जैसे मैं क्लास 12th में फेल हुई थी, तो क्या आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? 20 साल से मैं टीचर हूँ, और क्या मेरी इज्जत नहीं है? लोग कहते हैं टीचर की जॉब मतलब ब्लू कॉलर जॉब होती है। मेरे फादर ने मुझे कहा था, मेरा खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन मुझे कुछ और समझ ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने यही किया। एंड एज ए रिजल्ट आज मेरी इज्जत है। मेरी प्रिंसिपल ने आज मुझे कहा कि भाई आज मैं आपको अपनी वो भेजूंगी, डॉक्टरेट की थीसिस भेजूंगी, प्लीज एडिट कर दो। मैं इंग्लिश टीचर हूँ ना, इसलिए वो चाहते हैं। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, एक बार दिखवा देते हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट है, ये क्या बुरी है? और कोरोना ने क्या हमें सिखाया नहीं? क्या हम कम से में नहीं जी सकते? तो क्यों हम चीजों के पीछे भागे जा रहे हैं? आज दुनिया ने किसी ने कह दिया ओ माय गॉड तुम तो फेल हो गए, तो क्या हो गया? फिर कोशिश करो। कहाँ भागी जा रही है जिंदगी? कौन बाद में याद रखेगा कि भाई जैसे मैं फिजिक्स में फेल हुई थी, किसने याद रखा? 20 साल में मुझसे किसी ने नहीं पूछा। 20 साल टीचिंग के हो गए, उससे पहले 10-15 साल हो, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आपको फिजिक्स आती है। क्या फर्क पड़ता है? I was born with a very difficult pregnancy. The doctors told my parents that I won't be surviving it, but my grandmother was very adamant, and she forced the doctors to put me into the incubator rather than declaring me as DAAD very soon. धीरे धीरे जिंदगी का सफर बढ़ता चला गया, बहुत से उतार चढ़ाव आते चले गए। बचपन से ही हर समय एक नया रास्ता ढूंढने की जिद बनी रहती थी, और आसपास के लोग बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते थे, बट फिर भी हमेशा अंदर से लगता था कि नहीं, अभी और बहुत कुछ करना है। मैं शिफ्टेड टूवर्ड्स थिएटर कि वहाँ शायद कुछ वेंटिलेशन मिले। 2-3 साल थिएटर किया, बट फैमिली की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आने लगी, फिर उसको मुझे छोड़ना पड़ा लाइन को। बट फिर भी अंदर से यही रहा कि हार नहीं माननी है, समथिंग एल्स विल बी देयर फॉर मी, जहाँ मैं आउटशाइन कर पाऊंगी, जहाँ मैं चमक पाऊंगी, कुछ तो मेरे लिए भी होगा इस लाइफ में। और उसने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। फिर मैं साइकोथेरेपी की तरफ टर्न हो गई। साइकोथेरेपी में मुझे बहुत मजा आया। फिर से आई वेंट टिल द लेवल ऑफ वर्किंग विद द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट ऑफ दिल्ली, गिविंग माई होम कोचिंग ट्यूशंस एंड एवरीथिंग। मैं कभी रुकी नहीं हूँ। I have taught IAS officers, I have taught gold medalists in my life, though I am very young still, but I feel very proud that I was able to pull it through all the time. Failures are an integral part of everyone's life, be it a royal or be it a commoner or be it a prime minister or be it a civilian. All of us have faced failures, but the most important thing is how to rise from them. Failure make you disappointed, failures make you depressive, failures make you not wanting to get out of your bed, not changing your clothes, not taking a shower. You have to somehow come out of it. While it is difficult for a lot of people, they need help, it is one's own responsibility, in my opinion, that you have to lift yourself out of it. I felt like a failure for a long time, but my first step for success came when I compiled all my stories, all the short stories. I had written some stories in my college time when the lectures were going on. So one of my lecturers told me, Vatsala, why don't you publish these as a book? These are absolutely beautiful. So that's what inspired me. Someone's faith in me inspired me to write that book, compile it and publish it. For me, success is not a single step journey, not a straight journey. मेरे हिसाब से सक्सेस बदलता रहता है समय के हिसाब से। आपको खुश होना बहुत ज़रूरी है, आपका अपना इनर कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है, और जिस दिन आपको लगे या जब आपको समझ में आने लगे कि नहीं, अब यहाँ पर वो मज़ा नहीं आ रहा है, सो इट मीन्स अभी रास्ता बहुत बाकी है, आप स्विच ओवर कर सकते हैं। बट एक चीज़ हमेशा जो साथ रहनी चाहिए वो है नेवर डाइंग स्पिरिट,
रुकना नहीं है, थमना नहीं है। जर्नी है, रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितनी वो डेस्टिनेशन खूबसूरत होगा, जितनी वो मंजिल खूबसूरत होगी। तो रास्ते पर चलते रहो, करियर्स बदलो ना बदलो, एक करियर को लेकर चलो, वो भी सक्सेस स्टोरी डिफाइन करता है। मेरी तरह थोड़ा सेटिस्फैक्शन लेकर, बड़ा सेटिस्फैक्शन लेकर फिर आगे बढ़ दिए, वो भी सक्सेस स्टोरी डिफाइन करता है। सक्सेस क्या होता है? ये सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं। शुरू में आपको जिंदगी बनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से और उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम रियलाइज करते हैं हम जितना पैसे के पीछे भागते हैं उतना हमारी जो सक्सेस है, हमें लगता तो है लेकिन मन की शांति खत्म हो जाती है। मन की शांति बहुत जरूरी है। मैं 20 साल पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब मैं एट द एज 50 इग्नू से नई डिग्री कर रही हूँ। क्यों? मेरी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स ने कहा कि आप टीचिंग छोड़ दीजिए, तो मैं अपना करियर पाथ बदल रही हूँ। मैं लाइब्रेरी साइंसेस के लिए एक डिग्री कर रही हूँ एट द एज ऑफ 50 एग्जाम्स दे रही हूँ। तो क्या आप जिंदगी में सेम चीज, ऑल्टरनेट चीज, शिफ्टिंग ऑफ योर एप्टीट्यूड, शिफ्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों नहीं कर सकते? एक जिंदगी मिली है, रास्ता ढूंढिए तो सही। सक्सेस आपके रास्ते आएगा अगर आप मेहनत करेंगे। हाँ, स्मार्ट वर्क जरूरी है, लेकिन कभी कभी स्मार्ट वर्क ना मुंह की खाने पर मजबूर कर देता है। हार्ड वर्क कभी भी आपको ना धोखा नहीं देगा, और कोई भी नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। आप 10 डिग्री भी करोगे, हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगी। ये बहुत जरूरी है। तो आप क्यों नहीं अपने हिसाब से अपने पैरामीटर्स बनाइए। मेरा सक्सेस मेरे लिए क्या है? क्या मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ब्रांड के कपड़े चाहिए? क्या मुझे लोगों की वाहवाही चाहिए? या घर में अगर मुझे प्रॉपर अपनी मर्जी का खाना मिल रहा है, कोई मेरी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर रही हूँ। मुझे पेट रखना है, मैं पेट रख सकती हूँ। मेरे घर वालों को अगर कहीं छुट्टी पे जाना, मैं लेके जा सकती हूँ। सिर्फ इतना ही क्या जरूरी नहीं है? Why do I need more? Why must we run after money? Why must we go crazy for money? सक्सेस मतलब मेरे घर की खुशी, मेरे बच्चों की खुशी, मेरे पेरेंट्स की खुशी, और ये खुशी मेरे साथ से मिलती है। सिर्फ पैसे के पीछे भागने से उनको मेरी ये खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए सक्सेस के मायने सबके लिए अलग है। आप अपना सक्सेस तो ढूंढिए। आपके लिए सक्सेस क्या है? अगर सिर्फ पैसा है तो आपको एक बार फिर से देखने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। आप समझिए आपके पेरेंट्स को क्या चाहिए। सिर्फ अपनी जरूरतें नहीं, अपने बच्चों से पूछिए। आपके साथ बैठ के अगर वो रोड साइड खोखे पे चाट भी खा लेंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। उनको ये बड़े बड़े मॉल्स में जाने की शायद जरूरत ना पड़े। पता तो कीजिए क्या है सक्सेस आपके लिए।